Hello, good morning, student. Good morning, sir. Voice is clear. Susmita, Sarath. Yes, sir. Only 4 students. Okay. Good morning, sir. Very good morning. With just a few seconds, children are coming, so we start the. Okay. So again, we start the chapter 8. Okay. Today we taught you a chapter 8 introduction. Okay. Susmita. Neha. Sir. Neha. Yes, Yes. sir. Okay. So स्टडी आपने किया था बच्चे चैप्टर 8. Good morning, sir. Very good morning. Okay. So children you are preparing for other chapters और चैप्टर्स के भी आप रिवाइज. हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, रिवीजन करते रहना, ठीक है. यस सर. ओके. हाँ, आपको सिलेबस मिल ही गया है. सिलेबस मिल गया है ना बच्चे. यस तो बी प्रिपेयर. और इस चैप्टर के बाद आपका रिवीजन चालू हो जाएगा. ओके. इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और आपका एग्जाम डेट भी आ जाएगा. ठीक है. सिलेबस के बाद अब एग्जाम डेट आपको दे दिया जाएगा. ठीक है. तो बी प्रिपेयर. चैप्टर वाइज जब हम रिवीजन करेंगे तो जो भी उसमें प्रॉब्लम होंगे रिलेटेड विद एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे. ओके. ओके सर. यस सर. ओके. ओके. सो वी स्टार्ट द चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन. ओके. So first of all, the chapter name is quadrilateral. Okay. So first you write here chapter 8. Okay. The chapter is quadrilateral. Okay. Quadrilateral. Okay. So first of all, you distributed the definition. So quad is represent to the 4. Quad is represent to 4. Or lateral, that means represent to lateral. It's represent to the sides. Lateral is represent to sides. Okay. Yes sir. Okay. So already the previous exercise, previous chapter we taught you triangle. Triangle, that means here the 3 side. उसमें हमने क्या पढ़ा था? 3 side हमने पढ़ा था. ठीक है. And that next chapter is quadrilateral. So quadrilateral we'll read here 4 side closed figure. 4 side closed figure. ठीक है. Is ठीक है. A 4 side A, B, C, D. So here we see that the 4 side. Here the 4 side, and we know that A, B, C, D is called to the vertex. A, B, C, D. And what is the vertex? We know that if a common part for 2 arms, ठीक है, जहां पास 2 arms के लिए common parts होते हैं, उस common parts को we call to the vertex. So here 4 vertex A, B, C, D. So A, B, C, D is a 4 vertex. And here we see that is a closed figure. ठीक है. Most important is a closed figure. And here make a 4 angle. Angle A, angle B, angle C, angle D. Okay.
So here 3 points we see that if you write the definition, suppose अगर आपको definition लिखना है, so here write definition. If you write the definition of quadrilateral, so a closed figure, a closed figure having four sides, a closed figure having four sides, four angles and four vertices, okay, so is called quadrilateral. Okay, it's called to the quadrilateral. Okay, यहाँ तक clear बच्चे? Simple, a closed figure होगा, and here the four sides, AB is represent to side, AB is side, BC is side, and CD is side, and DA. Here the four sides, it's represent to four sides, and the four angles. So angle A, angle B, angle C, and angle D. It's represent to four angle, and the vertex is A, B, C, D. Here the four vertex. Okay, so this is the quadrilateral. Okay, this is the quadrilateral. If you write the definition, simple, you write the closed figure having the four sides, four angles, four vertex is called to the quadrilateral. Okay, it's clear? Then next step, you write the types of the quadrilateral. Types of quadrilateral. So types of quadrilateral. So first of all, we see that here the first quadrilateral is trapezium. First quadrilateral is represent to trapezium. So here write to first you write here trapezium. So trapezium. So trapezium में हम देखते हैं a trapezium is a figure of which types is the figure? इस तरह का आपको फिगर मेंशन किया होगा, ठीक है? ट्रेपेजियम जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं, so trapezium is given to figure is these times, okay? And here the opposite side is parallel. This side is parallel to this side, okay? This side is parallel to this side, okay? एक सेकेंड बच्चे, दिख रहा है, विजुअल हो रहा है? हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो एक मिनट बच्चे, ठीक है? हाँ, तो हम देखते हैं व्हाट इज द सो फर्स्ट यू राइट द नेम इज A B C D, ठीक है? Here again close four figure, here again close four figure, and we see that Yes, sir. what we see here a quadrilateral trapezium का अगर आप definition में जाते हैं हम a quadrilateral in which one pair ठीक है, इसका वन जो पेयर होगा वो क्या होगा? पैरेलल. इट्स रिप्रेजेंट टू पैरेलल साइड. लाइक एग्जांपल AB is parallel to
DC. CD side या DC side. Okay, AB is a parallel of CD DC. side. ये इक्वल साइन नहीं बच्चे, ये पैरेलल के लिए मैंने साइन लगाया, ठीक है. AB side is equal to parallel to, this is a parallel sign, is parallel to CD. Okay, AB is a parallel of CD. ये क्या हो गया, पैरेलल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन नेक्स्ट, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इट्स पैरेलल साइड में टू पैरेलल साइड इज अपोजिट साइड. ओके, पैरेलल साइड इज अपोजिट साइड. ओके, हमेशा अपोजिट साइड में होंगे पैरेलल साइड. पैरेलल साइड इज ऑलवेज अपोजिट. ओके, so here you write the parallel of opposite sides are parallel. ठीक है, अपोजिट साइड में जो होंगे वो पैरेलल को रिप्रेजेंट करेंगे. पैरेलल and the quadrilateral is called to the trapezium. Okay, the opposite side जो parallel side होंगे वो quadrilateral को represent करेंगे. So this quadrilateral we call to the trapezium. Okay, is called to the trapezium. ठीक है, ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सिंपल यू राइट हेयर ए बी साइड, ए बी एंड हेयर द सी डी या डी सी साइड इज रिप्रेजेंट टू पैरेलल साइड इज कॉल्ड टू द ट्रेपेजियम. ओके, ट्रेपेजियम होगा. समटाइम्स क्या होता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल भी होते हैं. ठीक है, जब ये इक्वल साइड होंगे, सपोज हेयर 5 सेंटीमीटर, हेयर भी 5 सेंटीमीटर, तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे. ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको आगे मिलेगा. आइसोसेलेस कब होगा, व्हेन टू साइड ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर इक्वल नहीं है तब स्केलन ट्राइपेजियम होता है. अगर इक्वल साइड नहीं होंगे तो स्केलन ट्राइपेजियम. लेकिन अगर बोथ साइड 7 सेंटीमीटर दैट मींस इज रिप्रेजेंट टू आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इज द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. ठीक है, सो पैरेललोग्राम में हम फिगर ड्रॉ करते हैं. ए बी सी डी. ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल इन विच, डेफिनेशन वैसे बुक में आपको दिया है, इन विच बोथ पेयर मतलब ए बी एंड सी डी एंड हेयर ए डी एंड बी सी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट both pair of opposite sides are equal. Sides are equal and parallel मतलब वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ए बी साइड इज अ पैरेलल ऑफ सी डी साइड. ए बी साइड इज अ पैरेलल ऑफ सी डी साइड एंड ए डी साइड ऑफ पैरेलल टू बी सी साइड. दैट मीन्स ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ओके, ध्यान रखना इस चीज को. एंड द अपोजिट साइड, ए बी का अपोजिट साइड इज सी डी एंड ए डी का अपोजिट साइड इज बी सी. ठीक है, सो हियर यू राइट अ क्वाड्रिलेटर इन बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल is called parallelogram. Is called a parallelogram. ठीक है बच्चे, ट्रेपेजियम और इसमें क्या डिफरेंस हुआ. ट्रेपेजियम में ओनली वन पैरेलल साइड होते हैं. ठीक है, ट्रेपेजियम में ओनली वन को पैरेलल साइड रिप्रेजेंट किया है. बट parallelogram में so here two parallel side, that means A B parallel to C D
and AD side is to parallel to BC side. ठीक है बच्चे, क्लियर? यहां तक क्लियर बच्चे? Yes, sir. Okay. फिर next we see that the third is a rectangle. ठीक है, तो rectangle का अगर फिर first of all draw the figure a rectangle. ठीक है, A B C D. ठीक है, सिंपल अगर रेक्टेंगल का डेफिनेशन देते हैं, a quadrilateral in which both pairs of opposite side मतलब A B का opposite, C D A D का opposite side, B C, both pair of opposite sides are equal. ठीक है, एंड ऑल्सो पैरेलल. ठीक है, ये अपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ठीक है, ध्यान रखना इस चैप्टर में मैक्सिमम आप पैरेलल वर्ड यूज कर रहे हो. ठीक है, पैरेलल. ठीक है, इज कॉल्ड टू द, ठीक है, पैरेलल एंड ऑल एंगल इज रिप्रेजेंट टू 90 डिग्री. और जितने भी एंगल्स बनेंगे, ठीक है, जितने भी एंगल्स, we know that how many angles? 4. 1 2 3 4. all angle is represent to 90 degree, यानी कि right angle, and all angles right angle, all angle represent to right angle is called a rectangle. ठीक है, सिंपल. अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं. पैरेलल साइड इज ए बी पैरेलल ऑफ बी सी डी. यस, ठीक है, और अनदर पैरेलल साइड इज ए डी पैरेलल टू बी सी साइड. ओके, सो 2 पैरेलल साइड मिल गए. एंड नेक्स्ट इज all angle is right angle. That means angle A, angle B, angle C, angle D, all represent to right angle. That means 90 degree. So angle A is 90 degree, angle B is 90 degree, angle C is 90 degree, and angle D is also 90 degree. 90 degree, 90 degree, 90 degree. all angle is represent to 90 डिग्री. ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया. नेक्स्ट इज स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लेते हैं? स्क्वायर. नेक्स्ट इज स्क्वायर. ठीक है, सो स्क्वायर में हम आ जाते हैं. स्क्वायर का फिगर ड्रॉ करते हैं. अगेन नेम पुट कर देते हैं ए बी सी डी. ठीक है, जस्ट मिनट. ठीक है, नेम पुट कर देते हैं ए बी सी डी. ठीक है, सो स्क्वायर अगेन वी नो दैट अ पैरेललोग्राम हैविंग all side are equal and each angle is equal to the right angle. ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो रहे थे, लेकिन here we see that all side equal. ओके, all side equal. और रेक्टेंगल में ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो रहे थे.
So here you write the parallelogram. देखो अब इसमें वर्ड भी आ रहा है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ध्यान रखना. Parallelogram, a parallelogram having all sides equal, a parallelogram all sides equal and each angle, each मतलब every angle की बात कर रहा है, ठीक है. each angle is equal, each angle is equal and it's represent to 90 degree to a right angle, it's represent to right angle, ठीक है. So is called a square, ठीक है. फिगर में एक्सप्लेन करते हैं. A B C D all are represent to figure is square. That means all side, AB side, BC side and CD side and AD side all are equal. All side AB, BC, CD and DA all side are equal. Okay. Next, the each side, each angle is represent to 90 degree. That means angle A is 90 degree, angle B is 90 degree, angle C is 90 degree, angle D is 90 degree. So here you write them: angle A, angle B, angle C, angle D, all are represent to 90 degree. यानी कि each angle is 90 degree. सभी angle 90 को represent करेंगे, ठीक है. अब आ जाते हैं पैरेलल साइड हम पढ़ रहे हैं. तो AB is parallel side of CD. AD is a parallel of CD and AD is parallel of BC, ठीक है. तो here two parallel side हमें मिल गए, two, ठीक है, two parallel side मिल गए. Next, all side equal हो गया, second, and the third is all angle is right angle. All angle is right angle, ठीक है. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट टू rhombus, ठीक है. नेक्स्ट rhombus में हम आते हैं, ठीक है. ऑल आर रिप्रेजेंट टू क्वाड्रिलेटरल फिगर, ठीक है. सभी जितने भी हम देख रहे हैं, इट इज द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर. ये क्वाड्रिलेटर के टाइप्स हैं, ठीक है. तो rhombus में हम आते हैं, rhombus, ठीक है. तो rhombus हम ड्रॉ करते हैं. थोड़ा सा स्लाइड ऐसे रहेगा rhombus का, ठीक है. अगेन इसका नेम मेंशन कर देते हैं, A B C D, ठीक है. अब rhombus देखते हैं. अब parallelogram having all side are equal. All side, that means AB side, BC side, CD side and DA side, all sides are equal. Sides equal, ठीक है. All side equal, but the difference between square and rhombus और square में simple एक difference ये होता है कि square में हमने अभी क्या पढ़ा कि all angle is 90 degree, but ये हल्का सा slight होता है, ठीक है. इस तरह slap रहता है, इस तरह हल्का सा रहेगा, तो ये कभी भी 90 नहीं represent करता, ठीक है. बस सिंपल डिफरेंस स्क्वायर और rhombus में यही होता है. rhombus और स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स, बोथ साइड्स आर इक्वल, बट square is each angle is 90 degree, but here 90 degree represent नहीं करता, ठीक है. ध्यान रखना है. So here a parallelogram having four sides या all side are equal is called to the rhombus. Equal is called a rhombus, ठीक है. स्क्वायर और rhombus में बस यही बेसिक डिफरेंस होता है. अब पैरेलल साइड यू टेक हियर, तो
AB is a parallel of CD, and BAD side is parallel to BC side. Okay, and the four equal side, that means AB side is equal to BC side, BC and CD and DA, that means all side are equal, बस only the difference between angles, दोनों में सिर्फ एंगल का डिफरेंस होता है. ठीक है, क्लियर बच्चे? रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस समझ में आया? यस. Yes, sir. नेहा, सुमन, Yes, sir. सुमन, Sir. Yes, sir. तुम ओके. ठीक है, अब नेक्स्ट और ये लास्ट है जो हम पढ़ते हैं, इट्स काइट. ठीक है, लास्ट जो हमारा होता है काइट. ठीक है, तो काइट में काइट शेप का हमारा होगा ये. ठीक है, किस शेप का होगा? काइट शेप का. ठीक है, काइट. तो यहाँ हम ड्रॉ करते हैं काइट शेप. ठीक है, ये हमने काइट शेप बना लिया. नेम दे दो A B C D. ठीक है, A B C D नेम. ऑलवेज AB साइड इज इक्वल टू BC साइड. ठीक है, काइट में ध्यान रखना, AB साइड इज इक्वल टू BC साइड एंड AD साइड इज इक्वल टू CD साइड. ठीक है, AD साइड इज इक्वल टू CD साइड. ठीक है, अगर आप इसका डेफिनेशन करते हैं, a quadrilateral is a kite if it has two pair of equal of equal adjacent. ठीक है, ध्यान रखना, एडजेसेंट. कौन सा एडजेसेंट लेना है? ये देखो, ये एडजेसेंट हो गया, एक ही एंगल पे दोनों इक्वल है. हेयर डी के लिए ये दोनों इक्वल है. सो एडजेसेंट साइड. ओके, एडजेसेंट साइड are equal. Adjacent sides are equal. Okay, adjacent side are equal. ठीक है, और ध्यान रखना जो अपोजिट होंगे. ठीक है, B का अपोजिट D है, B का अपोजिट D, और A का अपोजिट C. ठीक है, इस तरह भी आप इक्वल को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, इस तरह भी आप इक्वल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसमें हम लोग पैरेलल साइड फाइंड कर लेते हैं. तो पैरेलल साइड हमारा कौन सा है? कोई पैरेलल साइड इस रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं. ठीक है, so simple here we see that AB side is equal to BC side, AB side is equal to BC side, and CD side is equal to AD side, CD side is equal to CD side. ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, ऑलवेज AD साइड कभी भी ये इक्वल नहीं होगा BC साइड के. ठीक है, BC साइड के कभी इक्वल नहीं होगा. और इसी तरह CD साइड. ठीक है, AD साइड नॉट इक्वल टू BC साइड एंड CD साइड इज नॉट इक्वल टू AB साइड. ठीक है, कभी भी ये इक्वल नहीं होंगे. ओके, ठीक है बच्चे, ये टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या क्या पढ़ा? तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपेजिज्म देखा. ठीक है, ट्रेपेजिज्म का शेप इस तरह का होता है. ठीक है, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम देखा. पैरेललोग्राम के शेप हमने देखे. पैरेललोग्राम में 2 पैरेलल साइड्स होते हैं. ठीक है, एंड रेक्टेंगल में 4 साइड्स अगेन है, एंड 2 अपोजिट साइड इक्वल होता है, 2 पैरेलल साइड्स होंगे, एंड ईच एंगल इज रिप्रेजेंट टू 90 डिग्री. फिर देन वी टेक हियर नेक्स्ट स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा? स्क्वायर में all sides A, B, B, C, C, D and AD all side are equal.
ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि ऑल साइड इक्वल हो गए। फिर टू पैरेलल साइड है, ए डी साइड और बी सी साइड इक्वल हो जाएंगे, ए बी साइड और सी डी साइड इक्वल, ओके, एंड ऑल एंगल इज रिप्रेजेंट टू 90 डिग्री। रोम्बस, रोम्बस भी लाइक स्क्वायर बट द डिफरेंस इज एंगल, ठीक है, इसके भी ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस के भी ऑल साइड इक्वल होंगे, बट डिफरेंस क्या होता है, हेयर जो एंगल्स बनते हैं वो 90 नहीं, क्योंकि ये हल्का सा स्लाइड्स होता है, ठीक है। सो and the two parallel side AB parallel to CD side and the AD side is a parallel to BC side, okay, and next we take the kite, ठीक है, last quadrilateral हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, kite, a kite has, this is the shape of the kite, again four close figure, ठीक है, four side का यूज करके close figure, and here we see that the equal adjacent angle, this angle to this angle and this angle to this angle, but always the not equal, this side AD side is not equal to BC side and CD side is not equal to AB side always, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इस तरह का, हमने एक डायगोनल यूज किया था, ठीक है। तो डायगोनल जब यूज किया हुआ क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, तो उस पे आप कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इन्हीं 6 प्रॉपर्टी को किस तरह आप यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई डायगोनल पैराग्राम में बन गया या रैम्बस में या स्क्वायर में, तो हाउ टू सॉल्व देम, ठीक है, तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, किसके लिए ले लेते हैं हम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट वी टेक द पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम्स में डायगोनल दिया हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हेयर वी टेक द प्रॉपर्टीज द पैरेललोग्राम्स, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए लेते हैं, ठीक, फिगर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर होगा, ठीक। इसके बाद here we draw the two diagonals. The first we draw here this one, and the second we draw, ठीक है। Here we draw the two diagonals. Name दे दो A B C D, ठीक है। Here the name and the first, इस रूल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चे, और a quadrilateral is a parallelogram। अगर आप एक पैरेललोग्राम में ले रहे हैं, is a parallelogram if it is a opposite sides are equal, opposite side that means ये side इसके equal हो जाएगा, opposite sides equal होंगे, ठीक है। so opposite side equal, ठीक है, if opposite sides it equal, sides equal, ठीक है। A quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides equal। अगर opposite sides equal दिए हैं quadrilateral के, so quad is or the parallelogram is opposite angle are equal, यानी कि opposite angle भी equal होंगे। That means angle A का angle C opposite है, angle B का opposite angle D है, तो that means angle equal होंगे if the side is equal। अगर side equal दिया रहेगा तो that means a quadrilateral is parallelogram, a quadrilateral is parallelogram, a quadrilateral is parallelogram if opposite angle equal, opposite angle are equal, ठीक है, ठीक है। अब इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इफ अपोजिट साइड्स इक्वल होगा दैट मींस
अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर क्वेश्चन में सपोज अपोजिट एंगल दे दिया, सपोज ये भी 60 और ये भी 60, दैट मीन्स द अपोजिट साइड जो होंगे वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इफ साइड इज इक्वल दैट मीन्स अपोजिट एंगल इज इक्वल, और अपोजिट एंगल इज इक्वल सो अपोजिट साइड इज इक्वल, ठीक है। तो इस तरह आपका एक में ही दो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट देखते हैं, इफ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेटर बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहा है, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, ओ दे दिए, ठीक है। द बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, जब ये बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर तो दे क्वाड इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। ईच अदर दे क्वाड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेते हैं हम, ये तो अभी हमने किसके लिए किया, पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम फिगर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर हमारा आता है पैरेललोग्राम में तो चलो हो गया। अब इसके बाद अगर सपोज किसी और में दे दिया, ठीक है, अगर, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देख लिया इफ द इक्वल साइड अपोजिट साइड आर इक्वल, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, टू पैरेलल साइड मिल रहे हैं, द पैरेलल साइड ए बी का पैरेलल साइड सी डी हो जाएगा, और ए डी का पैरेलल साइड इज बी सी, ठीक है। पैरेलल साइड हो गए, तो देन इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, एंड इन अपोजिट साइड इज इक्वल, ओके, अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, एंड ए पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और डायगोनल जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। बच्चे ये समझ में आया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस की प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वी टेक हियर, अगर डायगोनल बनता है बच्चे, ये अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, डायगोनल्स के लिए, ध्यान रखना। अगर आपके क्वेश्चन में डायगोनल हो, जैसा कि कल हम कर रहे थे, ठीक है, डायगोनल्स अगर दिया रहता है तो पैरेललोग्राम में हमने अभी थ्री चीजें इसमें पढ़ी पैरेललोग्राम में, क्या, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और ऑलवेज डायगोनल इज बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह हम आ जाते हैं, इफ द डायगोनल सपोज गिवन टू द रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल्स प्रॉपर्टी, डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ rectangle, diagonal property of rectangle, square and rhombus, ठीक है। अगर एक सिंपल हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, डायगोनल के लिए सिर्फ आप डायगोनल देखना बच्चे इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ डायगोनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, नेम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो इफ, अब ध्यान से सुनना, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर इज इक्वल लेंथ, अगर रेक्टेंगुलर शेप का आपका फिगर होगा तो इक्वल लेंथ होगा, दैट मीन्स ये जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी, ये जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी, अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बाइसेक्ट कर रहे हैं तब, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है इस फिगर में, देखो ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल बनेगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि ए बी साइड, ए सी साइड और बी डी साइड वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। और बाइसेक्ट करने पे एक दूसरे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अगर ये 60 सेंटीमीटर की लेंथ होगी दैट मीन्स ये 30 और ये 30 हो जाएगा। अगर ये ए सी इज 20, ये भी 30 है तो ये भी 15-15 रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, रेक्टेंगल की। अब इसी तरह रोम्बस में लेते हैं, तो रोम्बस में थोड़ा सा हमें पता है कि वो स्लाइड कैसा होता है,